You never think it'll happen to you until it does. One day you're in a happy relationship. You trust them completely, and then suddenly you find out they cheated. Maybe you saw a text, maybe a friend told you, or maybe they just admitted it themselves. And just like that, everything shattered. If you're watching this, I want you to know you're not alone, and this is something that can happen to the best of us. That pain in your chest, that anger, that confusion, that why wasn't I enough feeling. I see you, and I promise you this is something we can get through. Hi, my name is Anjali. I'm a therapist and a happiness coach, and today I'm going to show you how to heal, rebuild trust in yourself, and come out stronger. Stay till the end because I'll share one powerful exercise that you can do today that can help you feel a little better. मैं ना आपको एक कहानी सुनाती हूँ. The story is about Riya. हमारे जैसे freelancer है, marketing manager है, and she is 32. She was in love with her boyfriend Aman, and it's been 5 years that they were together. And she honestly thought this is forever. But then things changed. Aman now started acting out. Late night work calls, hiding his phone, making excuses. And one night, while using his laptop, a notification popped. A message from another woman. Now, Riya didn't care if he's talking to other girls, and even Aman didn't care because they had a lot of mutuals. But this message was enough. It was proof of something that he did. When she confronted him, he admitted. He said it didn't mean anything. He said it was just a mistake. But for Riya, it felt like her entire world had collapsed. Maybe this story sounds familiar. Maybe you're living it right now. So I want to talk to you about what Riya did next, and I want to talk to you about how you can heal too. यार मुझे ऐसे लगता है हम लड़कियों को ना पता चल जाता है when something is wrong. कोई ना कोई sixth sense हमारी चलती है. So I want to talk to you about what Riya did next and how you can also heal from things like these. Healing ना betrayal के बारे में नहीं होती है. हीलिंग एक्चुअली सिर्फ आपके बारे में होती है. जो हुआ जैसे हुआ, हम मोस्टली सिर्फ इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम इससे कैसे निकलें या फिर हमारे साथ क्यों हुआ, व्हाई मी. सिमिलरली फर्स्ट फ्यू वीक्स रिया के लिए ऐसे ही थे. उसका वो बिट्रेयल उसके दिमाग में रीप्ले की तरह चल रहा था. उसने अपने आप को ब्लेम किया. बट यार पेन तो डिमांड करता है ना फील करना. अगर हम उसको सप्रेस कर देंगे तो हीलिंग का प्रोसेस तो सिर्फ हार्डर होगा. एंड ऑनेस्टली आई नो हम सभी बोलते हैं कि नहीं, आई शुडंट फील दिस, आई जस्ट हैव टू इग्नोर इट, आई विल पुट माई सेल्फ इन वर्क एंड आई विल नॉट केयर अबाउट इट. बट अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा चेंज करके बोलें कि नहीं यार, आई एम अलाउड टू फील हर्ट, बट मैं इस सिचुएशन में इस जगह पे हमेशा स्टक नहीं रहूँगी. अ लॉट चेंजेस बाय जस्ट दैट वन शिफ्ट. दैट शिफ्ट फ्रॉम व्हाई डिड ही चीट टू व्हाट डू आई नीड. रिया काफ़ी टाइम तक सिर्फ इस बात पे ऑब्सेस होती गई कि यार अमन ने ऐसा कर कैसे दिया. क्या वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी? क्या उसने रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट नहीं रखी? बट द रियल क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू चीटिंग, व्हेन इट कम्स टू इनफिडेलिटी, इज नॉट व्हाई ही डिड इट. इट्स अबाउट व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ. बिकॉज वो तो चीट करके निकल गया ना यार, उसने कर लिया उसको जो करना था. एक छोटा शिफ्ट कि हम इस सिचुएशन में यहाँ से आगे कैसे बढ़ सकते हैं. आज हमें क्या चाहिए? हमें स्पेस चाहिए, कंफर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए. एक बार लिख के देखो ना कि इस टाइम, इस सिचुएशन में, इस जगह पे आपको क्या ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर पाओगे. देखो ये ना आई एम नॉट गुड इनफ वाली चीज़ ऑनेस्टली कह रही हूँ, हम सब फील करते हैं. मैंने भी बहुत बारी करी है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने करी है. बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, you did not cause them to cheat. इनफिडेलिटी उस इंसान की रिफ्लेक्शन होती है, उस चीटर की चॉइस होती है, आपकी वर्थ नहीं होती है. रिया ने अपने आप को बहुत टाइम तक ब्लेम किया था, unless and until one day she realized कि यार it is not about her and darling it's not about you either. चीटिंग होने के बहुत रीजंस होते हैं, पर आपका इनफ या ना इनफ होना उसमें से एक रीज़न बिल्कुल नहीं होता. इसलिए एक ट्रस्ट अपनी फ्यूचर सेल्फ के लिए, अपने लिए बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है. हीलिंग ना सिर्फ मूव ऑन करने के लिए नहीं होती. हीलिंग इसलिए होती है कि मुझे अपनी लाइफ इससे बेटर चाहिए.
क्योंकि जब तक तुम अपने आप को वो प्रॉमिस नहीं कर पाओगे तो यार मैं या हम में से कोई भी तुम्हारी मदद कैसे करेगा। और हम सबके प्रोसेस में ना एक वो दिन आता है जहाँ भी से कि यार इनफ इज इनफ, आई डोंट डिजर्व टू क्राई फॉर दिस वन पर्सन सो मच, I deserve to have a happier life. I deserve to have a partner who respects me. I deserve a better beginning and a better ending for myself. और वही चीज़ ना इस हीलिंग प्रोसेस में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो देखो, अपना आई एम नॉट इनफ को आई एम इनफ में कन्वर्ट करना शुरू करो। थोड़ा सा ट्रस्ट इन द फैक्ट दैट थिंग्स चेंज, क्योंकि यार चेंज ना हमारा कॉन्स्टेंट है। दुनिया में हर चीज़ हर रोज़ सिर्फ बदलती है। हाँ, हम उस रिलेशनशिप को ग्रीव करते हैं, हाँ हमें बुरा लगता है और हमें उस इंसान की बहुत याद भी आती है। शायद दुनिया के सारे सैड सॉन्ग्स आपके लिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और हर सैड सॉन्ग की हर लाइन आपको रिलेटेबल लग रही होगी, बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन रिलेट विथ ऑलवेज। एक चेंज की ज़रूरत इधर भी होती है। सो द वन टिप दैट आई सेड आई विल टेल यू इनिशियली इज़ वेरी सिंपल। एक ना लेटर लिखो, खत, टू योर फ्यूचर सेल्फ हु हैज गॉन थ्रू ऑल ऑफ इट एंड हाउ शी इज़ राइट नाउ, व्हाट इज शी डूइंग एंड हाउ डज हर लाइफ लुक लाइक राइट नाउ। क्योंकि आप ये जानना डिज़र्व करते हो कि चीटिंग तो सिर्फ अभी हुई है ना, इस साल हुई है ना। अगर आज से 5 साल बाद की बात करूँ मैं, तो क्या आप इसी चीज़ में स्टक रहोगे या आप अपनी लाइफ के साथ कुछ बेटर कर रहे होगे। सो स्टार्ट राइटिंग इट, राइट एन एंटायर लेटर एंड आई वॉन्ट यू टू स्केड्यूल इट। आज इसको लिखो, स्केड्यूल करो अपनी ईमेल में इसको और बोलो कि 6 महीने बाद मुझे ये पूरा लेटर डिलीवर होगा। जीमेल में, आउटलुक में, सब में ये सेटिंग्स होती हैं, आराम से गूगल सर्च में मिल जाएगी। पर करके देखो, अंडरस्टैंड यार, हीलिंग तुम्हारे बारे में है, किसी और के बारे में नहीं है। ये जो तुम खत लिखोगे ना, इसमें बस ऐसे लिखना, डियर फ्यूचर मी, यू डिडंट थिंक यूड मेक इट थ्रू बट यू डिड। You're more powerful than you ever knew and you don't look back with regret but just wisdom and love, you know, now it just starts with you। ये बस सैम्पल है। जब मैंने लिखा था अपने लिए तो इसी तरीके से लिखा था, तुम भी इस तरह से कुछ अपने लिए लिख सकते हो। बस याद रखना कि अपने आप को भेजना मत भूलना। अब देखो यार, चीटिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप, मैं और हम में से बहुत सारे लोग बहुत इम्पैक्ट करते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो भेजो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को जिसकी इसकी एक्चुअली ज़रूरत होगी। और हाँ, वो एक लाइक का बटन होता है नीचे, उसको भी दबा देना इफ़ यू फाउंड इट रिलेटेबल। अगर कुछ बताना चाहो तो कमेंट सेक्शन भी सिर्फ आप ही के लिए है। एक ऐसी चीज़ ज़रूर लिख देना जिससे आपको लगता है आप अपने अंदर कोई चेंज इस वीडियो के थ्रू ला सकते हो। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू एंड इफ़ यू आर रेडी to take your healing even deeper, अगली बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो देखते रहना।